آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ڈیجیٹل والیٹس کا نظام ہم نے متعارف کرایا ہے. بہت شکایتیں تھیں کہ کٹوتی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ان کو ملتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں. آخرکار آ گئی وہ خوشخبری جس کا آپ تمام لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا. جی ہاں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قسط سموں کے ذریعے ملنا شروع ہو چکی ہے. آپ بھی بار بار یہی سوال کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی یہی اپڈیٹس چل رہی ہیں کہ اب جو نئی والیٹ سمیں آپ نے بی آئی ایس پی کی جانب سے وصول کی ہیں، بی آئی ایس پی کے دفاتر سے لی ہیں، وہ سم جو ہے آپ کا ایک والیٹ ہے اور اسی سم میں آپ کے پیسے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو وہ لوگ جن کی ابھی تک سمیں رجسٹرڈ نہیں ہوئی، جن لوگوں کے پاس سمیں نہیں پہنچی، ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ آج اس پر بھی اہم ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور نئی قسط کے حوالے سے بھی بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے، وہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اور آج سے باقاعدہ طور پر کون کون لوگ اپنے پیسے لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اگر آپ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اپنی نئی والی قسط لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس معلومات کو غور سے سننا ہے. اور صرف یہی نہیں، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس بار بچوں کے وظیفے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور کفالت پروگرام کی قسط ان لوگوں کو دی جائے گی یا نہیں جن کے پاس ابھی تک سم نہیں پہنچی، یا وہ لوگ جنہوں نے ڈائنامک سروے نہیں کروایا اور ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے ان کا سٹیٹس 8171 ویب پورٹل پہ تبدیل کر دیا گیا ہے، تو ان لوگوں کا کیا بنے گا یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے. ابھی آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ اپنی والیٹ سمیں لے چکے ہیں انہیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ بھئی بس اسی سم پر ہمارے پیسے آ جائیں گے یا اس پر کوئی اکاؤنٹ بھی اوپن کروانا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال موجود ہے اور آپ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں کہ بھئی اکاؤنٹ کہاں سے بنوانا ہے، کیسے بنوانا ہے، یا بنوانا بھی ہے یا نہیں، تو اس بارے میں بھی آج آپ کو اہم ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں، اس بار یہ جو قسط آ رہی ہے یہ ایک ایسی قسط ہے، مخصوص قسط ہے. اگر آپ نے اس قسط کے دوران تھوڑی سی بھی غفلت برتی تو آپ کو کافی سارا نقصان ہو سکتا ہے. وہ کس طرح کہ اگر آپ نے وقت پہ اپنی سم نہ لی یا سم وصول کی اور اس پہ جو آپ کے سوشل پروٹیکشن والیٹ کے حوالے سے شرائط و ضوابط ہیں ان کو پورا نہ کیا، اکاؤنٹ بنوانا ہے تو وہ نہ بنوایا، تو اس طرح کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو بے نظیر کفالت پروگرام سے ملنے والی رقم سے محروم کر سکتی ہے. لہٰذا آپ یہ جو 1 مہینہ ہے یا 1.5 مہینہ جب تک آپ کے پیسے آپ تک نہیں پہنچ پاتے تب تک آپ نے معلومات کو بھی غور سے سنتے رہنا ہے اور جن پر عمل بھی لازمی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بس آپ نے معلومات سنی، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، تو بھئی اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں، ہماری ریسرچ ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے فائدے کی بات ڈھونڈ کر لے آئیں اور آپ کو بتائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں، آسان الفاظ میں سمجھائیں، تو پھر آپ بھی اپنے فائدے کے لیے معلومات کو غور سے سن لیا کریں اور اس پر عمل بھی کیا کریں. تو آئیے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں. اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ تمام لوگ ابھی سے یوٹیوب چینل سکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اچھا ویور، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ جن خواتین نے، جن لوگوں نے اپنی والیٹ سم لے لی ہے ان لوگوں کی تو آپ یہ سمجھیں کہ عید ہو چکی ہے، کیونکہ اب والیٹ سم لینے والوں کو ہی پیسے ملیں گے، باقی کسی کو 1 روپے تک کی رقم نہیں ملے گی. کیونکہ والیٹ سم ہی ایک ایسا ذریعہ ہوگا جو آپ تک بی آئی ایس پی کی جانب سے، حکومت کی جانب سے آپ تک یہ پیمنٹس لائے گی. اگر وہ ذریعہ نہیں ہوگا تو آپ تک رقم کسی بھی صورت میں نہیں پہنچ پائے گی. تو اس لیے ہم آپ کو بار بار یہی بتا رہے ہیں کہ اس بار اگر آپ غفلت میں رہے، آپ نے چھوٹی سی غلطی بھی کر لی تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. بہرحال ابھی ہم ایک اہم ترین اپڈیٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ بھئی آج سے باقاعدہ طور پر سم لینے والے افراد کو قسط مل سکتی ہے یا نہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ قسط پر نہ جائیں، آپ یہ تو دیکھیں کہ بھئی آپ کو یہ کسی نے بتایا ہے کہ بھئی بس آپ نے سم لے لی اور اسی سم پر ہی آپ کو پیسے ملیں گے. بھئی اگر پہلے تو آپ کو اس طرح کسی نے نہیں بتایا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر کسی نے بتایا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ سراسر آپ تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہے کہ جھوٹی خبر پھیلا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ صرف سم لینے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کے پیسے آپ تک نہیں پہنچیں گے. اب یہ سم لینے کے بعد آپ کا سوشل پروٹیکشن والیٹ یعنی ڈیجیٹل والیٹ جو ہے وہ اوپن کیا جائے گا، جو کہ ان 6 بینکس میں سے کسی ایک کا ہو سکتا ہے. ایزی پیسہ کا ہو، جیز
जैज़ कैश का हो, बैंक ऑफ पंजाब का हो, बैंक अल फलाह का हो, HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक का हो या फिर हबीब बैंक लिमिटेड का हो, ठीक है, इनमें से किसी भी एक बैंक का डिजिटल वॉलेट बनाया जाएगा और उस पर आपको पैसे भेजे जाएंगे और वो वॉलेट इसी सिम पर बनेगा, इसी सिम के साथ लिंक होगा। जब भी आपकी किस्त आएगी तो आपको इसी सिम पर मैसेज भी आएगा और मैसेज के दौरान ही आप देखेंगे कि आपके डिजिटल वॉलेट में पैसे आ चुके होंगे। अभी आपके ज़हन में एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि भाई जब हमें सिम मिली है तो उसी वक्त ये अकाउंट क्यों नहीं बनाया गया, हमें बार बार क्यों दफातर के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। देखें भाई, BISP के ऑफिस में तो सिर्फ ये नेटवर्क के रिटेलर्स हजरात मौजूद थे जो आपको ये सिम में रजिस्टर्ड करके दे रहे थे, वहां पर सिर्फ आपको सिम ही दी जा सकती थी। लेकिन ये जो डिजिटल वॉलेट वाला मामला है ये बैंक्स का है। अब बैंक्स के रिटेलर्स जो हैं वो आपका डिजिटल वॉलेट ओपन करेंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई वो हमें कहाँ मिलेंगे। देखिए, इस हवाले से अभी तक जितनी भी अपडेट्स आपको दी जा रही हैं कि भाई फलां तरीका है कि आप किसी दुकान पर चले जाएं, वहां से आपका अकाउंट बन जाएगा, फलां ऐप इंस्टॉल कर लें और उससे आपका अकाउंट जो है डिजिटल वॉलेट बन जाएगा, फलां कोड मिला लें आपका डिजिटल वॉलेट बन जाएगा, तो ये सरासर झूठ है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको हकीकी अपडेट से आगाह किया जाए। ये जो भी लोग आपको बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। ठीक है, अभी तक BISP की जानिब से आपके डिजिटल वॉलेट्स की लिंकिंग और इसके अलावा मुकम्मल प्रोसेस जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हुआ। पायलट फेज में आप तमाम लोगों को बहुत जल्द ये डिजिटल वॉलेट्स की एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी और इस हवाले से आपको लाहे अमल बताया जाएगा और आपको तरीक़ाकार बताया जाएगा कि भाई आपने कहाँ जाना है, बैंक की ब्रांच में जाना है, बैंक में जाना है, बैंक के रिटेलर के पास जाना है और किस बैंक के रिटेलर के पास जाना है और वहां से अपना अकाउंट कैसे बनवाना है। ये सब कुछ मुकम्मल तरीक़ेकार जो है हम आपको बताएंगे। मतलब वो सवाल आपका कि हम अपनी सिम से पैसे किस तरह निकाल सकते हैं, तो इसका जवाब भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आप अपनी सिम से खुद पैसे निकाला करें, आपको कहीं जाना ही ना पड़े, लाइनों कतारों से भी छुटकारा मिले, कटौतियों से भी छुटकारा मिले, अगर आप किसी मिडलमैन के पास गए तो ज़ाहिर सी बात है आपकी पेमेंट जो है वो कट कर ली जाएगी। ठीक है, फिर वही कटौती और फिर वो परेशानी जाग उठेगी, तो जिससे हम बच रहे हैं और BISP की जानिब से भी उसी से बचने का ये तरीक़ेकार निकाला गया है। ठीक है, अब उससे आपने बचना है और घर बैठे अपनी सिम से अपने पैसे खुद निकालने हैं, तो उसके लिए आपको अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम आपको फौरी तौर पर ये अपडेट्स दे सकें। और हाँ, जितने भी लोग अपनी सिम से खुद पैसे निकालना चाहते हैं घर बैठे और इसका मुकम्मल तरीक़ेकार जानना चाहते हैं, तो वो लोग अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में यस लाजमी लिखें। हम आप तमाम लोगों के नाम नोट कर रहे हैं, आप तमाम लोगों के नाम लिखेंगे और फिर उसी को बताएंगे जो बंदा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जो बंदा कमेंट्स में यस लिखेगा। सिर्फ सब्सक्राइब करने या सिर्फ कमेंट करने से नहीं, आप सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें ताकि इस हवाले से आपका नाम हम तक जरूर पहुंचे। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपका नाम हमारे नोटिफिकेशन लिस्ट में जरूर पहुंचे और हम आपको ये तरीक़ाकार बता सकें। ज़ाहिर सी बात है जब ये अपडेट्स आएंगी तो हम आपको तफसीली तौर पर एक वीडियो की सूरत में बताएंगे, ये मुकम्मल तरीक़ेकार वजह होने की सूरत में आपको बताया जाएगा। उससे पहले कोई जुगाड़ हम आपको नहीं बताते जिससे आपका नुकसान हो और आपने खुद ही कोई ट्राई नहीं करनी। इजी पैसा, जैज़ कैश, इस तरह के कोई अकाउंट नहीं बनाने। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका खमियाजा भी आप ही भुगतेंगे। परेशानी आपके लिए ये बनेगी कि आप अकाउंट बना बैठेंगे, ठीक है, और बाद में वो अकाउंट किसी काम का नहीं होगा। हो सकता है कि सिम पर आपका डिजिटल वॉलेट भी ना बन सके। तो इस तरह के इश्यूज हैं। ठीक है, बाकी काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारे जिला में किस बैंक का अकाउंट ओपन किया जाएगा, तो उसकी लिस्टें हमारे पास पहुंच चुकी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिला की लिस्ट आप तक पहुंचाई जाए कि आपके जिला में या आपकी तहसील में कौन कौन से बैंक्स के अकाउंट ओपन किए जाएंगे, किस बैंक का डिजिटल वॉलेट ओपन किया जाएगा, तो इसके लिए आप अपने जिला का नाम भी कमेंट्स में लाजमी लिख दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब नई किस्त की बात करते हैं कि बेनजीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त कब आ रही है। इससे पहले भी हम हर वीडियो में आपको बार बार यही बता रहे होते हैं कि भाई हुकूमत की जानिब से, BISP की जानिब से ये एक टारगेट रखा गया था कि 15 जून तक काफी सारी बेनिफिशरीज को ये वॉलेट में पहुंचा दी जाएंगी और फिर ये आखिरी तारीख भी बना दी गई थी। ठीक है, 15 जून तक ये देखा गया कि टारगेट मुकम्मल नहीं हुआ। काफी लोग रहते थे, तकरीबन कोई 80% के लोग जो हैं वो अपनी सिमें ले चुके थे। ठीक है, बाकी 20% के करीब लोग जो हैं अपनी सिमें भी नहीं ले सके। तो उन लोगों को मजीद एक मौका दिया गया कि आप 30 जून तक अपनी वॉलेट सिमें ले सकते हैं। ठीक है, अब 30 जून जो है ये एक आखिरी मौका है आप तमाम लोगों के लिए और इस पर आपने करना क्या है कि आपने 30 जून से पहले अपनी वॉलेट सिमें लेनी है। अगर आपसे ये मौका भी ज़ाय हुआ तो फिर बाद में आप भटकते रहेंगे। आपको हो सकता है कि एक 1.5 महीने का या 2 महीने का मजीद इंतजार करवाया जाए। तो बेहतर ये है कि 30 जून तक आप अपनी सिमें ले लें।
अब 30 जून तक जितने भी लोग सिमें ले लेंगे उनके अकाउंट की ओपनिंग का सिलसिला और मुकम्मल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, 1 जुलाई से। और ये सिलसिला भी 10 से 15 दिन या 20 दिन तक रहेगा और आपके इसी सिम पर आपके डिजिटल वॉलेट्स ओपन किए जाएंगे और फिर उन वॉलेट सिमों के अंदर आपको रकम भेजने का सिलसिला उस वक्त शुरू हो जाएगा जब उस टारगेट के मुताबिक तमाम बेनिफिशरीज के वॉलेट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखने में ये आ रहा है कि इंशाल्लाह 10 जुलाई से पहले पायलट फेज के तौर पर ये किस्त जारी कर दी जाएगी। अभी हम आपको बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आज से तमाम लोगों को सिमों के जरिए पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। हाँ, पायलट फेज के तहत कुछ लोगों की सिमों में या उनके डिजिटल वॉलेट्स में ये पेमेंट्स ट्रांसफर की जा सकती हैं, ठीक है। बाकी आप ये ना समझें कि भाई आज ही से ये किस्त मिलना शुरू हो चुकी है और आप अपनी सिमों का उल्टा पुल्टा कर दें उनको, या उन पर कोई कोड्स ट्राई करें या फिर किसी रिटेलर के पास चले जाएं, तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। और हाँ, आपने ये जो सिम ली हुई है ये किसी अजनबी शख्स को आपने नहीं देनी, अदरवाइज आपको नुकसान होगा, आपको परेशानी बनेगी, आपकी पेमेंट्स जब्त हो सकती हैं, ठीक है। अब नई किस्त के हवाले से एक बार फिर आपको दोहरा दें कि भाई ये आपकी सिमें मिली हैं, इसके बाद अकाउंट ओपन होंगे, उसके बाद किस्त जारी की जाएगी जो कि अगले तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि काफी तेजी से काम जारी है, तो हम दफातर से भी अपडेट्स ले रहे हैं कि काफी तेजी से काम जारी है। सिमें काफी हद तक अब टारगेट मुकम्मल हो चुका है, तकसीम हो चुकी हैं और अकाउंट्स की क्रिएशन और लिंकिंग जो है बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आप तमाम लोगों को हम बताएंगे, खुशखबरी देंगे, मुकम्मल तरीकेकार समझाएंगे, घर बैठे आप अपनी सिमों से पैसे निकाल सकेंगे। याद रहे कि इस बार कफालत प्रोग्राम की किस्त 14,500 रुपए होगी और साथ ही आपको बच्चों के वज़ाइफ जारी किए जाएंगे, यानी इस बार भी आपकी 25 से 30,000 रुपए की रकम जरूर आएगी। मतलब जिन लोगों के 2 से 3 बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं तो उनकी इतनी रकम जरूर आएगी, ठीक है। और अगर आप अभी से इस यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम आपको इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी देंगे इन सिमों के मुतालिक। अगर आपका कोई मसला है, आपके डिजिटल वॉलेट के हवाले से आपका कोई मसला है, तो वो भी आप हमें जरूर बताइए। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल को सुना जाएगा, उनका हल आपको बताया जाएगा। अभी तक ऐसे तमाम लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कमेंट्स में यस नहीं लिखा या अपना मसला नहीं बताया, तो उन लोगों को एक बार फिर बता दें कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे इन सिमों के जरिए अपनी पेमेंट्स जो हैं खुद निकालें, आपको कहीं भी ना जाना पड़े, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में यस लिख दें। एक और सवाल ये भी है कि आपने सिम ली है या नहीं, ये भी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अच्छा, काफी सारे लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सोमवार से किस्त जारी होनी थी, आप ही ने बताया था, तो ये क्या माजरा है। भाई वो लोग जिनके अकाउंट्स में पहले से कोई पेमेंट्स आई हुई हैं, बच्चों के वज़ाइफ आए हैं, उन्होंने नहीं निकलवाए, या कफालत प्रोग्राम की किस्त आई है उन्होंने नहीं निकलवाई, तो वो ले सकते हैं, ठीक है। उसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। तो ये समझे कि उन लोगों के लिए तो ज़ाहिर सी बात है नई किस्त अब आ चुकी है, ठीक है। तो इससे पहले रिटेलर शॉप वाला सिस्टम था वो क्लोज कर दिया गया है। अब आप तमाम लोगों को घर बैठे बहुत ही आसानी के साथ बगैर किसी कटौती के ये पेमेंट्स मिला करेंगी। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। BISP में भी आपको बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। BISP के बजट में बहुत बड़ा इजाफा किया गया। 838 अरब रुपए का एक तारीख का सबसे बड़ा बजट जो है वो BISP के लिए रखा गया है और इंशाल्लाह इसी बजट की जो 838 अरब रुपए की रकम है ये आप तमाम लोगों में तकसीम होनी है। तो ये 14,500 रुपए वाली किस्त 20,000 तक जा रही है। इंशाल्लाह हर 3 माह बाद सिर्फ कफालत प्रोग्राम की किस्त जो है वो 20,000 हो जाएगी। बच्चों के वज़ाइफ जो है वो तो इससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो तमाम तरह अपडेट्स आपको इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर मिलेंगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।